Morning. We are studying the second part of नेल्सन मंडेला टॉपिक चैप्टर 2। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर तक पहुंच चुके थे। क्वेश्चन मैंने दिया था जिसे पूरा करना है। आज हम उसके बाद वाले पार्ट को पढ़ेंगे। पहले मैं पैसेज पढ़ूंगा, फिर इसकी समरी समझाऊंगा, लास्ट में फिर क्वेश्चन आंसर हैं। नाउ वी आर रीडिंग। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected only moments before. The highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Now listen. कुछ वक्त पहले हमारी आंखें आश्चर्य हो चकित हो चुकी थी जब कुछ क्षण के बाद हमारी आंखें विस्मय से आश्चर्य हो उठी जब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका जेट हेलीकॉप्टर एक उपस्थित तरीके से दिखाई दिए। यह सेना का न केवल एक नियम पूर्वक प्रदर्शन था बल्कि एक अच्छा प्रदर्शन था। सेना के प्रजातंत्र के प्रति नई सरकार की वफादारी का जो प्रजातंत्र का सही रूप से चुनी गई थी वो दर्शाया गया था। कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना और पुलिस के बड़े जनरलों ने जिनके कपड़े पर रिबन और पदक लटके हुए थे मुझे सलामी दी और वफादारी की शपथ ली। मैं उस तथ्य से भी अनजान नहीं था कि कुछ वर्ष पहले इन्होंने ही मुझे सलामी न देकर गिरफ्तार किया था और अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों के धुएं को वी का आकार में छोड़ा। Now, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nexoy Sickle, Africa, and black singing Stem, the old anthem of the Republic, although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. वह दिन मेरे लिए प्रतीक था, एक पहचान थी, एक याद थी जो दो राष्ट्रगान बजाने का और एक स्वप्न की श्वेत नया राष्ट्रगान गाए और अश्वेत उस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान गाए। यद्यपि उस दिन उनमें से कोई भी उस गीत के बोल नहीं जानता था जिससे वे कभी घृणा करते थे, परंतु वे शीघ्र ही ये शब्द सीख जाएंगे धीरे धीरे क्योंकि आज़ादी मिल चुकी है। नाउ the next one. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century, and my own 8 decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people, regardless of the color of their skin. उद्घाटन के दिन
मैं इतिहास की उस अनुभूति से अभिभूत हो उठा। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कुख्यात अंग्रेज़ बोर युद्ध के कुछ वर्षों के बाद मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले यानी गोरे लोग, अंग्रेज लोग ने आपस में समझौता करके अपने देश के अश्वेत लोगों यानी अफ्रीकन लोगों के जातीय दमन की प्रथा आरंभ की। जो ढांचा उन्होंने तैयार किया वह उन सब से अमानवीय और सख्त था जिनसे कभी विश्व समाज अवगत था। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में यह ढांचा हमेशा के लिए उखड़ चुका है और इसके स्थान पर एक ऐसा ढांचा जो रंगभेद के बिना सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। इट्स ओके। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble lines ended and now began again with me. I was painted that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. वह दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदान के कारण आया था। उन लोगों के कष्ट और साहस की गिना या चुकाया नहीं जा सकता था। उस दिन मुझे अनुभव हुआ, जैसे कि पहले भी कई बार हुआ है, कि मैं उन सभी देशभक्तों का जोड़ हूँ, यानी मिला जुला असर हूँ, सबके बीच का पुल हूँ जो मुझसे पहले हुए हैं। वह लंबी और आदर्श पंक्ति समाप्त होकर मुझसे शुरू हुई है। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ऐसा। मुझे दुख है कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो नहीं रहे। जब फ्रीडम फाइटर सब नहीं रहे तब ये आज़ादी मिली थी नेल्सन मंडेला को, इसलिए वो याद कर रहे हैं अपने पुराने फाइटर्स को, और वे यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदान ने क्या प्रभाव किया है। नाउ नेक्स्ट वन। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effects, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselus, the Chief Lutilus, the Yusuf Daudos, the Bram Fishers, the Robert Sobukus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it required such depth of operation, the create such height of character. My country is rich in the minerals and gems that be beneath its soil, but I have always known that its great wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. पृथक्करण की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को कभी न खत्म होने वाला गहरा घाव दिया है। हम सबको उस गहरे घाव से उभरने के लिए यदि कई पीढ़ियां नहीं तो बहुत वर्ष बिताने होंगे, परंतु दशकों के उस उत्पीड़न और पाशविकता ने एक और अनिश्चित प्रभाव पैदा किया है, और वह है कि इससे ओलिवर टॉम्बोस, वॉल्टर सिसलस, चीफ लुथिसस, यूसुफ ददुस, ब्राम फिशर और रॉबर्ट रॉब्रुक्स जैसे हमारे समय के असाधारण साहसी, ज्ञानी और उदार व्यक्ति दिए कि उनके जैसा शायद ही कोई हो। शायद ऐसे उच्च चरित्र के निर्माण के लिए गहन उत्पीड़न की आवश्यकता है। मेरा देश खनिज और हीरों से संपन्न है जो इसकी भूमि में दबे हैं, परंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं जो अच्छे, सच्चे और हीरों से शुद्ध हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea,
I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. अब इन्हीं साथियों के संघर्ष से नेल्सन मंडेला ने साहस का अर्थ सीखा है। समय समय पर नेल्सन मंडेला महिलाओं और पुरुषों को एक विचार के लिए खतरा उठाते हुए और जीवन देते हुए देखा है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने देखा है कि मनुष्यों को आक्रमणों का सामना करते और बिना झुके अत्याचारों का सामना करते, सब प्रकार की मुसीबतों से जूझकर उनसे उबरने का साहस दिखाते जो अकल्पनीय हैं। मैंने सीखा कि साहस से डर को भगाना नहीं बल्कि उस पर जीत हासिल करना है। ऐसा नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, साहसी व्यक्ति वही है जो डरता नहीं। साहसी व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. कोई व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता कि वह धर्म, पृष्ठभूमि और चमड़ी के रंग के आधार पर किसी से भेदभाव करे। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सके तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय में इसकी विरोधी की अपेक्षा प्राकृतिक तरीके से आता है। यहाँ तक कि जेल के कठिनतम समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की अंतिम सीमा में पहुँचाया गया, मुझे रक्षकों में से एक में मानवता की चमक दिखाई दी थी। गार्ड्स जो थे वहाँ पे उनके द्वारा कही जा रही है, शायद एक क्षण के लिए, परंतु इतना ही मुझे आगे बढ़ने का उनसे विश्वास मिला जो पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता है। यहाँ तक के टॉपिक पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको पढ़ लेने के बाद आंसर कीजिएगा और इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन सर, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ हैज़ देयर अल्टीट्यूड चेंज्ड एंड एनी व्हाई? सेकंड, व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो एंथम नेशनल क्यों संग किए जाते थे? थर्ड, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी? मंडेला ने डिस्क्राइब किया उनकी गवर्नमेंट सिस्टम में कंट्री में फर्स्ट डिकेड कैसे थे और फाइनल डिकेड में 20th सेंचुरी में क्या हुआ। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, साहस से क्या मतलब मंडेला का। और फिफ्थ है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, क्या है सच में प्राकृतिक चीज़ें क्या होती है। टू लव और टू हेट, प्यार करना या घृणा करना। इसके क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पर लिखकर फाइनली रखेंगे। फर्दर आई विल चेक। इट्स ओके, थैंक यू।